आराम से आराम से। And how do you add people? To add people. Huh? What? To add, just start joining. Kevin has to join and then he has to. Hey guys, what's up? Welcome. Just want to take this time to talk about something. What's up, Ankit? What's up, Arul? What's up, Nirmal, Piyush? Praise the Lord, bhai, bहनों, Solomon, शानू जी, कैसे हो भाई? What's up, Solomon? Simeon ji. Nirmal, I want to say I never knew that you were here, by the way, in Delhi. I only came to know abhi recently when Arul said that you guys are here. Hey Samson, doing well bro. I'm actually waiting for our guest. मेरे बाल खराब है तभी मैंने टोपी पहनी है. Just waiting for Kevin. I don't know how many of you know Kevin, but just want to take this time to Kevin is here. He actually sent you a request. View. Did you send him a request? Hi Alvinder ji. What's Hello. up? Very good, very good. Let's just say hi. Ajit bhai, praise the Lord. Melda, what's up? Joshua Martin, कैसे हो भाई? Praise the Lord. Praise the Lord. Hi Deepa, hi Ankit Kumar, praise the Lord. Next sort of question. So what's up? How are you doing, bro? All good, brother. Sweet. Hi, brother Piyush. Good evening. Praise the Lord. Praise the Lord, brother Praise the Joshua. Lord, Veena Didi. Praise the Lord. कैसे हैं आप? All right. We are going to begin. हम शुरुआत करने जा रहे हैं. मैं बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ यहाँ का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ because this has been मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं this has been a really big desire of मेरी प्रिय धर्मपत्नी स्नेहा जी का my wife, and she's really been, I think she comes with I feel she comes with very good ideas to really engage the audience with what are the issues that will really bring transformation into everybody's life. So मैं ये समय I don't want to take too much of my time. I'm going to leave and Sneha is going to come on, but before that I want to introduce to you Kevin. Everybody, hi Kevin. Everybody who doesn't know, this is Kevin in the screen. He is a dear brother of our from our church. But above that, I want you to know he's obviously going to, during the questions that Sneha is going to ask, you're going to know about his life. But I just want you to know that he is a dedicated person. And the main reason I wanted to bring him today and Sneha's idea was to show how it is necessary for us to be relentless. कितना ज़रूरी है और अनिवार्य है हमारे विश्वास में हमको ना सकारात्मक नहीं नकारात्मक चीजों को ना देखते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ना है और सबसे जो परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर हम सबके लिए सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनाए. सो केविन इज हियर. आपसे प्रचार करने के लिए नहीं है आए हैं यहाँ पे, ना ही हमारे वो गेस्ट स्पीकर है, मगर स्नेहा एंड केविन आर गोइंग टू हैव अ डायलॉग एंड स्नेहा इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू केविन कि हम सब में से हम सारे लोग जो आज अभी सुन रहे हैं हम सबको प्रॉब्लम होती है कि हम सुसमाचार कैसे सुनाएं. हाउ डू वी प्रेजेंट द गॉस्पेल. आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम नॉट अ टीचर. मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आती, मैं शाय हूँ, ये फलाना ढिमकाना. देयर आर सो मेनी रीजंस दैट वी गिव. मगर आज के जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे उसके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सेशन है
इसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और दूसरा आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आप भी परमेश्वर के लिए एक नमक और ज्योति बन सकते हैं और आप भी केविन की तरह यू कैन ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट व्हिच इज आवर बिगेस्ट मैंडेट इन आवर लाइव्स। अब मेरा समय आ गया है बच्चे का ध्यान रखने का, सबसे इंपॉर्टेंट समय आ गया है और आई एम गोना कॉल स्नेहा एंड ऑल द बेस्ट केविन, वी लव यू एंड ऑल द बेस्ट। आओ लड्डू कम, come मेरा पापा। Hello, Kevin. Hello, Hi. everyone who's watching. Hi. I am not as interesting and as funny as my husband, so you might lose a few. You might lose viewers. No, that's fine. That's fine. Anyway, how are you? Very good, sister. Okay. So I just हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश में हो so that everybody can understand it. Absolutely. Hi, Pastor Ivan Pawar. I am a big fan of yours. You've never met me, but I am. Hi, Piyush. How are you? So yes, I just want to give a brief introduction Kevin के बारे में. Generally हमारा जो एक फर्स्ट इंटरेक्शन होता है लोगों से मिनिस्ट्री में उस लेवल पे होता है कि अच्छा ये पास्टर है या फिर ये मिशनरी है, बट मेरा जो इंट्रोडक्शन केविन से हुआ था वो हुआ था एज समबडी जो मिनिस्ट्री में नहीं है, जॉब करते हैं, पर उनका फ्रूट बड़ा ऐसे मिनिस्ट्री टाइप था। एवरी संडे बहुत सारे लोगों को चर्च लेकर आना, यू नो अराउंड ऑन एन एवरेज मैं 6-7 लोग तो देख ही लेती हूँ जो चर्च वो लेकर आते हैं। थोड़ा सरप्राइज होता है जिस संडे वो चर्च लेकर नहीं आते लोगों को। सो मैं बीइंग अ पास्टर्स वाइफ वो मेरे लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग था, एंड देन आई थॉट कि यू नो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। और हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं, वी ऑल लव गॉड, बट आर वी एबल टू pursue evangelism like Kevin does? If we are not able to, so I just wanted to know his heart कि उसके दिमाग में क्या चलता है, you know, because at the end of the day वो भी human being है, you know, he is not a special angel or something, कि उसके दिमाग में कैसा चलता है, उसकी journey कैसी है, so that all of us also can get encouraged, you know, and probably try to walk on the same path. So मैं Kevin से कुछ questions पूछूंगी। First question है Kevin कि What is the reason? क्या कारण है कि आप लोगों को चर्च लेके आते हो? Yeah. So being a pastor's wife, you know, मुझे पता है कि सिर्फ एक spiritual investment नहीं लगती है, time की इन्वेस्टमेंट लगती है, मनी की इन्वेस्टमेंट भी लगती है एज अ मिनिस्टर। यू नो जब आपको लोगों से बात करनी होती है, आप उनको घर से निकाल के चलो कॉफी पीने चलते हैं, चलो हम यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, सो आपको पता है आपके पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, बट व्हाट मेक्स यू ब्रिंग पीपल टू चर्च एवरी संडे? क्यों? The first thing is that सबसे पहला चीज मुझे ये है कि जब मैं पाप में घिरा हुआ था ना, मुझे ये एहसास भी नहीं था कि there is a savior who can take you out of your pain, take you out of your struggles, take you out from your addiction. मुझे ये पता नहीं था कि ये यीशु मसीह है या कोई है जो इसको मेरे को इस चीज से आजाद कर सकते हैं। So I was living a life that I was thinking दिस इज लाइफ ओनली, यही जीवन होगा शायद, नशे में रहना, जीवन को पैसे कमाना और अपना जॉब करना, यही जीवन होगा शायद। Until I came to know when someone shared the gospel with me, किसी ने परमेश्वर के बारे में मुझे बताया, then I felt yes, there is a savior who can save me. So what God has done in my life, I want to share with people. What God has done in my life, how he took care of me even from the first day in my mom's womb. So I just want to share that परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है उसी को मैं उनको लोगों से शेयर करता हूँ कि it doesn't matter time things and this is not even the criteria। मैं सोचता भी नहीं इसके बारे में। कभी कभी तो मैं अपने बच्चों को, सना को छोड़ देता हूँ, मैं वहां जाना है, मुझे जाना है, उसके पास जाना है, चाहे दिन का हो, रात का हो, एनी टाइम। Like, you know, my doors are open 24/7, like, you know, 365 days. Anybody can call me 24 hours, anytime. So I just want to give the love that God has given me to the person who doesn't know that there is a savior who can take care of them. Yeah. So what you're saying is, just to brief it for the audiences, कि आप जो evangelism करते हो, it's not something जो आप एक
उस हिसाब से करते हो कि अरे मैं क्रिश्चियन हूं ना तो मुझे तो इवेंजलाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोग मुझे बैड क्रिश्चियन बोलेंगे, या फिर इवेंजलिज्म हर क्रिश्चियन को करना ही चाहिए, यू नो? मैं बट आप हम्म, इवेंजलिज्म, जस्ट टू ब्रीफ इट फॉर आवर ऑडियंस, इसलिए करते हो बिकॉज यू वांट एवरीबडी whom you met, almost everybody whom you meet, sorry, to experience what God has that in my done for life, you. yeah, You know yeah, कि भाई, और the best thing what I really liked about your answer is that you said that उस टाइम पे आपको ये लगता था कि you know लाइफ तो यही है, सो यू, इट डजंट मैटर टू यू कि कोई दुखी है या नहीं है, व्हाट मैटर्स टू यू इज कि जब जीसस के साथ एनकाउंटर होगा इनको अपने आप समझ आ जाएगा दिस इज नॉट रियली लाइफ. exactly, yeah, So it yeah, is you wanting everybody to live in God's plan. It is a very mm-hmm. personal thing for you. It's not कि अरे मेरे को अपने पास्टर को बताना पड़ेगा कि तुम लास्ट 6 महीने में कितने लोगों को चर्च लेके आए. So No, it's a not very that, yeah, personal thing for you. yes, You know, yes, yes, and I yeah, think for an evangelist it is very very important. अगर आपके लिए ये चीज एक पर्सनल चीज नहीं है तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे after a while. exactly, You know, exactly, mm-hmm. thank you for that answer. You know, I'm sure a lot of people out there who जिनका desire है evangelism करने का वो नहीं कर पा रहे हैं. They should be checking their heart कि what is my intention Mm-hmm. सुसमाचार सुनाने का. क्या Mm-hmm. मेरा इंटेंशन है कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, जबरदस्ती है, या फिर इज इट कि मैं बांटना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन में क्या किया और वो आपके जीवन में भी कर सकता है. एंड आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ प्लेस कि आप हर व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं. यू नो, यू लव पीपल Exactly, अराउंड यू. yeah, yeah, एक्सीलेंट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम इंडिया की पॉपुलेशन को सबको पता है कितनी है. यू नो, mm-hmm. इट्स अनकाउंटेबल. तो जब आप बाहर निकलते हैं, व्हेन यू गेट आउट, सो आप कैसे, क्या मेंटली पिक करते हैं? डू यू मेंटली पिक पीपल कि अच्छा यार इसको सुना देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसको गुड न्यूज, हाउ डू यू डिसाइड? So when I go out, I always have this thing in my mind. सबसे पहले तो मैं इस बंदे को कैसे approach करूं? How do I approach and break into a conversation so that I can share the love of. I don't pick, I don't choose कि because Jesus came to this world for everyone. what I meant was कि आप बाहर निकले, ठीक है, अब आप कैब में बैठे समझ लीजिए, तो क्या आप सोचते इसको गुड न्यूज बताऊं नहीं बताऊं, ये सुनेगा नहीं सुनेगा, ऐसे चलता है आपके दिमाग में? क्योंकि Yes. ऐसा नहीं, आई हैव आल्सो शेयर्ड गुड न्यूज इन पास्ट विद पीपल, बड़ा मैंने फिल्टर किया है, इसको बता देती हूँ, इसको रहने देती हूँ. तो क्या आप ऐसे फिल्टर करते हैं लोगों को? बिकॉज यू नो आपने अपना नाम भी फेसबुक पे इवेंजलिस्ट केविन क्रिश्चियन लिखा है, सो आप अपने इवेंजलिज्म में कैसे डिसाइड करते हैं इसको इवेंजलाइज करना है, इसको नहीं करना है? I'll share you a very interesting this one. When मेरा पासपोर्ट में नाम चेंज करने में गया था, तो that person asked me, Christian, ऐसे भी किसी का नाम होता है क्या? So I said, yes, I know that God has worked in my life, so I want to use that name for you know, to share the love of Jesus Christ. That yes, I am a Christian. I am holding a name called Christian. So ऐसे ही मैं कैब में भी, जब भी जैसे आपने पूछा कैब में जाता हूँ तो कुछ बताता हूँ क्या, जब मैं कैब में बैठता हूँ तो मैं उस बंदे से बात करता हूँ, and most of the time I find them somebody has shared something to them about Christ. और जब मैं कन्वर्सेशन को ब्रेक करता हूँ, आई डोंट जस्ट गो इनटू देम एंड से दैट जीसस एंड देयर इज नो, आई जस्ट शेयर माय लाइफ, व्हाट गॉड हैज डन इन माय लाइफ. मेरे जीवन में क्या परमेश्वर ने किया उसको मैं उनके सामने रख देता हूँ. एंड देन द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, एंड देन समटाइम्स आई इवन कम टू नो दैट वो चर्च जाता था, समटाइम आई इवन कम टू नो दैट वो एक विश्वासी था, समटाइम आई कम टू नो दैट किसी ने मुझे 20 साल पहले परमेश्वर के बारे में बताया था, मैं जानता हूँ. सो well, it is that somebody has sown something in his life, and that the seed is working in his life. Yeah. So I don't choose and pick. I just look for an opportunity to just break into that conversation to talk about Christ. Yeah. Yeah, because मुझे बहुत every time when I think about sharing a good news with someone, मुझे बहुत थोड़ा सा लगता है कि सुनेगा नहीं सुनेगा. But what you do is जो मिला उसको सुना दो good news. Exactly. The hope की The एक seed we opportunity just है sow कि it. इसकी Yes. life inside. Yeah. Yeah. But God works. it takes a lot of boldness to do it. You know, it takes a lot of boldness to do it. So how do you handle the no's? I'm sure कि आपको सारे yes ही मिलते हैं या no भी मिलते हैं? नहीं, yes से ज्यादा no मिलते हैं. पर yeah, sometimes people I'm losing you. मेरे Everybody conversation के साथ जुड़ जाता able है. to hear us? I think so. Yeah, I can hear you.
क्या? ओके ओके ओके। नहीं, आपको आप इतने सारे लोग लेकर आते हो, ऐसे लगता है समाचार सुनाते हो। तो कोई आपको ना नहीं बोलता कि नहीं नहीं यार हमको नहीं सुनना है जीसस के बारे yeah, में। people say, but yeah, my job is to sow the seed. अगर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परमेश्वर का प्यार उसके जीवन में देना है किसी भी तरह से। I just want to share one line also, that the seed has been sown. वो बीज बो दिया है मैंने, ताकि परमेश्वर उसका ध्यान रखे। मेरा काम वहां खत्म हो जाता, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, परमेश्वर, I have done my job, it is now your job to grow the seed. So मैं बस छोड़ देता हूँ। Like when I was in MTV and some bikers wanted to meet me, and I called them, yeah, sure, please come and meet me. So they said, where? I said, just come to church. Sunday morning I called them, and there were like 35-40 bikers coming tuk stairs से। मेरे pastor मुझे देख के बोलते हैं, Kevin, what is this? What's happening? I said, they're my fans. They came to see me after the show. I said, oh wow. So from that group, one of the person that he got saved, he accepted Christ out of that group. So my this one goal is not to see everybody coming to Christ. My goal is to sow the seed in any manner it is. Yeah. So ये एक मतलब आपका एक जो आंसर है उससे व्हाट आई कैन डिराइव पर्सनली ऑल्सो, कि कई बार हम पीछे हट जाते हैं सोच के कि पता नहीं खुदा इसके जीवन में काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि नहीं समझाऊंगा। बट अगर आप एक इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लीव दैट बर्डन ऑन गॉड। You know, Yes. your job as an evangelist is not to save people. Your job as an evangelist is to sow the seed. And I think this answer is going to help a lot of people in evangelizing in future, कि अरे आपको मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज से कि ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। आज नहीं करेगा, शायद कल कर दे, परसों कर दे। ये जरूरी नहीं है कि ये बंदा बचाया जाएगा, कि रिजल्ट जरूरी नहीं है आपके सामने होगा। Exactly. Your job as an evangelism is to sow the seed. अगर कोई आप, so now I'm thinking कि अगर मैं किसी को जाकर बोलती हूँ, listen, I want to talk to you about Jesus, और वो बोलते निकलो यहाँ से, तो वो जीसस बोल के भी मैंने एक सो कर दिया सीड। एक सीड सो हो गया, राइट। द नाम उसके जीवन में रह जाएगा। हाँ, या बोल दिया मैंने, यू नो, कि आई वांट टू टेल यू कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मतलब सच्चा खुदा, जीसस, निकलो यहाँ से, वो भी मैंने एक सो कर दिया सीड। सो ऑल द यंग ओल्ड किड्स, बच्चे अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज समथिंग पर्सनली मेरे को भी बहुत इस बात ने मेरे से बात करी कि ये मेरा बर्डन नहीं है। अगर मैं ये बर्डन जो सुसमाचार सुनाने के लिए लेके चलूंगी, तो शायद यही कारण है कि मैं इतना गुड न्यूज मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ लोगों से, क्योंकि मैं अपना शायद एक पर्सनली बर्डन ले लेती हूँ कि पता नहीं खुदा काम करेगा, अभी करेगा कि नहीं करेगा। पर मेरा काम है सिर्फ बीज बोना और उसके बाद खुदा पे छोड़ देना। राइट। As you said in your previous answer कि आप कई लोगों से मिलते हैं जिनके लिए लोगों ने, जिनके जीवन में पहले भी in past people have किसी ने बता रखा, कि हाँ हम चर्च जाते थे, हाँ किसी, so now you are able to take it further. Yeah, so just to water them. That's marvelous. Thank you so much for that answer. It's spoken to me personally. Now next question that I want to ask you is so ये हमेशा से मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रही हूँ ये जानने में भी आपसे कि एक बताइए मुझे, हाउ डज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन लुक्स लाइक। समझ लीजिए अब मैं कैब ड्राइवर हूँ और अब कैब में बैठे, तो आप मुझे कैसे इवेंजलाइज करोगे? सबसे पहले तो मैं उससे एक वार्तालाप स्टार्ट करता हूँ, जैसे बोलता हूँ भाई आप कैसे हैं, कैसा? Let's do dummy evangelism. Okay, नमस्ते let's सर, do it. कैसे Yeah. आप? सर आप बढ़िया कैबिन सर, में आप बैठ जाइए। अच्छा, ये अब हम कैब चला रहे हैं, मैं कैब चलाना बंद कर देती हूँ। हाँ। और कैसे हैं आप कमाई में कैसे चल रहा है? कैसे सर, आप कैसे? काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भैया, सब ठीक ही चल रहा है। अभी आपको तो पता ही है, घर चल जाए बस, रोटी चल जाए बहुत है। मैं भी कभी अपना कैब चलाया करता था, लेकिन कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। अरे और आपको क्या जरूरत है? आप तो मुझे बाहर से लगते हैं अपने नाम से, केविन। मैंने 2 साल पहले कैब ले रखा था अपना, और खुद ही चलाया मैंने उसको। जब मेरे पास जॉब नहीं था, काम नहीं था, मैं चलाया उसको, लेकिन मैं चला नहीं पाया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जैसे आप जितना आप मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा
लाइक 12 घंटा 18 घंटा आप चलाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, ऑसम ये तो ऑसम। है, हमारा बस रोटी चलता है। अभी मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दे तो मैं तो कैब चलाना छोड़ दूं, बहुत थक अरे जाती हूँ। पाजी, ये सबसे अच्छी नौकरी है, क्योंकि आप अपना आजाद, अपना अपना खुद का जॉब करो, किसी के सामने मतलब टाइम से आ गए, टाइम से जाना है, आपको अरे कुछ नहीं सर, करना, अभी आप जब बोल चाह। रहे हो स्ट्रेस वाला नौकरी, बोल रहे हो अच्छा नौकरी, आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे हो सर, मैं नहीं कर क्या पाया प्रोफेशनल, लेकिन आप कर पाते हो, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ चल जाता है साहब, चल जाता है। हमारे हमारे जो ईश्वर है, भगवान है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। पहले मैं ऐसे आज जो जीवन जी रहा हूँ, जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था पहले। मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में रहता था, मैं ड्रग्स लेता था, मैं शराब में डूबा हुआ था, बहुत मेरे जीवन बहुत खराब था। लेकिन मैं मतलब अपने आप को मारने भी चला गया था। मैं आई वांटेड टू किल माई सेल्फ। मैं कभी कभी अपने मतलब डिप्रेशन से इतना परेशान हो गया था, लेकिन यीशु अरे मसीह वो बोल के एक परमेश्वर। बहुत लोग डिप्रेशन से मर जाते हैं सर, हमको भी, मुझे कभी लगता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, लगता है कि ये दुनिया छोड़ के बस चले जाऊं। बस डिप्रेशन रोटी ऐसी एक खींच रहे चीज है, हैं, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, बीवी को नहीं छोड़ सकते साहब, क्या है। डिप्रेशन ऐसी एक चीज है जिसका हल सिर्फ यीशु मसीह के पास है। मेरा नाम नूरुल अहमद, यीशु मसीह का मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक मुसलमान बंदा होके। आपका नाम भी इमरान खान देखा मैंने। तो जैसे मैं जब अल्लाह से बात करता था या अपना नमाज पढ़ता था, मुझे एक रिलेशनशिप फील नहीं होता था। हाँ, तो लेकिन यीशु मसीह यीशु, तो हमारे कुरान में भी लिखा है, हमको पता है यीशु मसीह के बारे में सब जो कुछ। जो कुरान का यीशु मसीह है, वो मरे नहीं। जो बाइबल का यीशु मसीह है, वो मेरे लिए मरे। आप ये अलग देखिए, अलग यीशु मसीह है क्या? दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टाइप से बताया गया, लेकिन बाइबल की जो यीशु मसीह है, वो मेरे लिए जान दिए। अब नहीं मेरे, साहब, आप हमको ये यीशु मसीह के बारे में मत बताओ, हमारे तो अल्लाह ही सब कुछ हमारे लिए है, हमको तो जन्नत में जाना मैं है बस। आपको यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम सहन करके हमको बस जन्नत में जाना है, मैं आपको सारा एक अच्छा बात काम बताता हूँ। करके। क्या हम अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं? कभी उसे चोरी करना सिखाते हैं? कभी उसे ईर्ष्या करना सिखाते हैं? मेरी नहीं, बेटी मेरा अब छोटा तीन वाला तो साल मुझे की है। उल्टा जवाब देता है हमेशा, मैंने तो कभी नहीं सिखाया। एग्जैक्टली exactly. वो इसीलिए होता है क्योंकि वो पाप खून में है। मेरी बेटी भी पापी है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि वो कितने साल पापी की है। है क्यों? आपकी बेटी? 3 साल की बेटी है मेरी, और 7 महीने का बेटा अरे है साहब, मेरा। आप 3 साल की बेटी को पापी क्यों बोल रहे हो? पाप मेरे खून में था, इसी खून के वजह से उसके खून में गया है, और उसी वजह से वो पापी है। और हर एक व्यक्ति पापी है इस दुनिया में। आप, मैं, पूरे जगत में जितने बच्चे बूढ़े, सारे दुनिया के सारे लोग पापी है, बाइबल कहती है। और उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हमने बच्चों को कभी नहीं सिखाया कुछ ऐसा करना, लेकिन वो खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खून में है, वो अंदर में है, वो उस अदम और हवा के टाइम से उनके जीवन में से चलता आ रहा है। वो भी हमारे खून में। हमें किसी ने नहीं सिखाया झूठ बोलना, पर हम तो बिंदास झूठ बोलते थे। इतना बिंदास झूठ बोलते थे कि किसी को हम्म पता भी ना चले। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उन्होंने हमारे पापों को लिया और एक हम्म। नया जीवन दिया हमें। वो 3 दिन बाद जी उठे। उनका कब्र ही ऐसा एक कब्र है पूरे ब्रह्मांड में जो कभी भी खाली है। कोई कोई उसमें कुछ कोई नहीं है उसमें। इट्स एम्प्टी, इट्स रिटन। तो इसका मतलब फिर, तो हमें अगर जन्नत में जाना है तो फिर हमें क्या करना है, अगर मैं परमेश्वर पापी हूँ तो? बाइबल में कहता है कि जो भी कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे, और ये विश्वास करे कि उन्होंने अपने लिए जान दी है, मेरे लिए जान दी है, तो वो बंदा स्वर्ग की ओर जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो फिर आप मुझे सर अपना नंबर दीजिए, मैं आपका नंबर सेव करूंगा और फिर मैं आपसे बिल्कुल, फिर मेरे से नंबर बात आपके करूंगा पास आ सर। गया। आपके पास आ गया, आपके उसमें रिकॉर्ड में होगा, आप देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये ऐसी बात तो मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ किसी से। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, यू नो, कि कैसे हम बात कर सकते हैं लोगों से। मतलब इट्स, आई थिंक इट्स अ कॉलिंग अपॉन योर लाइफ, बट अगेन दिस इंटरव्यू स्पेशली फॉर पीपल जिनको लगता है कि इवेंजलिज्म उनकी कॉलिंग है और उनको बोल्डनेस नहीं है, या उनको लगता है कि हम कैसे बात करें, क्या करें। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन। और मेरे को ये फर्स्ट टाइम हमने ऑफकोर्स अपने थोड़े आंसर्स रिवाइज किए थे, और ये मैं सबके सारे हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप चुप हो गई क्योंकि मुझे चुप होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने आंसर रिवाइज किया था केविन के साथ, मैंने कहा अच्छा केविन, लेट्स डू अ मॉक कॉल, हम थोड़ी तैयारी करते हैं, है ना। एक्चुअली में केविन ने मेरा मुंह बंद करा दिया था, मैं एक्चुअली सुनने लग गई थी बड़े इंटरेस्ट के साथ। सो दिस इज नॉट अ ड्रामा दैट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब फर्स्ट टाइम मैंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ करो, तुम इवेंजलिज्म दिखाओ कैसे करते हो,
उसने जब मेरे से ये बात करनी शुरू करी, बच्चे भी पापी, आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट आई एक्चुअली गॉट इंटरेस्टेड. So yes, if any one of you want to connect with Kevin and want guidance from him in terms of evangelism, I want to encourage you to do that, you know, because it's a gift and I'm sure he would love to share it with all of you and help you grow in it. Right. Thank you, Kevin. My next question is, uh, how important is the role of prayer in the life of an evangelist? You know, क्या It's मतलब very important, yeah. बिफोर ड्यूरिंग इवेंजलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है प्रेयर करना, और आप मुझे थोड़ा अपनी प्रेयर लाइफ के बारे में बताइए रिलेटेड टू दिस. Prayer is such an important tool for evangelism. I feel not only evangelism, for everything as a believer. That's true. But for me, it's a conversation with my God, my Father. जब मैं घर से निकलता हूँ, प्रार्थना करते निकलता हूँ, जब मैं किसी से बोलने वाला हूँ परमेश्वर के बारे में या यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताने वाला हूँ कि उसका जीवन बचाया जाए, आई जस्ट हैड अ स्मॉल टॉक विथ माय डैड एंड से, पापा मुझे इनके बारे में बताना है, परमेश्वर मुझे इनको आपके बारे में बताना है. जस्ट प्रिपेयर हिज हार्ट, उसका दिल को तैयार करो ताकि मैं जब बोलूं तो वो समझे, वो आपके प्यार को समझ पाए. सो इट्स कंस्टेंट कन्वर्सेशन विथ हिम, नॉट ओनली कि मेरे प्रेयर टाइम में तभी मैं प्रेयर करूंगा, उससे प्रेयर नहीं करूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ कन्वर्सेशन. लाइक यू डोंट हैव टू go to a room. I'm not saying that you don't pray like that, but you don't have to go all the time in a room and pray. You can always talk, because our Father is always with us. He's always there listening to us. Amen. As a father, not as a God. Wow. As a father, he's there. एक पिता की तरह वो हमारे साथ है. तो वो कभी भी, आप जब भी आवाज देंगे वो आपके साथ है. Just talk to them, open your heart and just say, God, I need you. Guide me, lead me. ऐसे ही मैं उनसे बात करता हूँ. And I feel like that is the prayer I pray when I share, when I go or when I talk. Sometimes it happens also कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन before he even finishes the question, I have that answer in my mind and I just keep on saying, but I don't know how, कैसे बोलना उसको. लेकिन जैसे मैं अपना मुंह खोलता हूँ, वो बाकी के एक लाइन खोलता हूँ और बाकी के 10 लाइन परमेश्वर पूरी कर देता है. और फिर मैं अमेज हो जाता हूँ, अरे मैंने कैसे बोल दिया उसको, अरे क्या एग्जांपल दे दिया. So it happened to me a lot of times. Yeah. Wow, that's amazing. So, what are you trying to tell me is, or tell our audience is कि आप जो as a prayer करते हो, that prayer is more like your dependence on God. Exactly. For Full for dependence. Yeah. saving that person, for speaking to that person. It's not like अरे मैं प्रेयर नहीं करूंगा तो खुदा इसको बचाएगा नहीं, अगर मैं ज्यादा it's प्रेयर not. नहीं करूंगा तो गॉड विल नॉट यूज मी. जैसे कि यू सेड, आपने बोला कि गॉड इज ऑलवेज विद अस. ओपन योर हार्ट. जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, गॉड आई एम गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, आई नीड यू टू लीड मी, आई नीड टू गाइड मी, आई नीड टू गिव मी द वर्ड. सो इट्स मोर Absolutely. लाइक डिपेंडेंस की, यू नो. आई हैड रेड दिस समवेयर एंड ये लाइन इज वेरी एप्ट फॉर योर मिनिस्ट्री की ministry is not us ministering to God, it is God ministering through us. तो हमें अपने आप को Like a vessel we have we are to used, make yeah. ourselves dependent on God and let God do things through us. So Amen. ये आप बड़े बड़े शब्द, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब बोलने में, बट ऐसे नहीं है कि आप हालेलुया and you know Heavenly Father, Lord, I come into your presence, I bow down. नहीं, it's just like a conversation, you know. Conversation, God, yeah, exactly. Father, मैं आप ही का काम करने जा रहा हूँ, बस सब कुछ आपके you just हाथ में lead दे me. रहा हूँ. Right. बिकॉज कई बार हम ये प्रेशर लेते हैं, यार मैं इतना प्रेयर नहीं कर पाया इसलिए खुदा ने. इट्स जस्ट योर डिपेंडेंस फर्स्ट. अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट गॉड टू यू नो bring a feeling of dependency in the heart of the person you are ministering to. So this is what about this question, this is what I want to leave with all of you guys, is कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रेयर वॉरियर होने की जरूरत नहीं है. योर इवेंजलिज्म, फर्स्ट क्वेश्चन से भी हमको यही पता चला कि योर इवेंजलिज्म will come out of your personal relationship with God, and so will Absolutely. prayer. अगर आप इतने desperate हो कि परमेश्वर लोगों के God should work in the lives of people, तो आप automatically will be like, मैं तो किसी को बचा नहीं सकता हूँ, only God you can do it, so I'm dependent on you. Amazing. Absolutely. Thank you so much. And I always look for an opportunity to, whether the person is a well-educated person or a person, वो एक plumber है या एक toilet साफ करने वाला, it doesn't matter to me.
I just want to speak to them. That is all matters. And once I speak to them, एक बार मैंने मुंह खोला तो परमेश्वर का प्यार उससे मिलता है. कई बार ऐसा हुआ है कि उसने मतलब अपना दिल खोल के कई कई लोगों ने रोया है, कई लोगों ने बोला कि यार मैं परमेश्वर के साथ था लेकिन मेरे ऐसा हो गया तो ऐसा इसलिए मैं नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया. So people are hungry for God. So don't pressurize yourself कि मुझे उसका रिजल्ट आना, because we people are result oriented. हम हमेशा रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट आया तो हमारा काम हुआ. No, even participating in that exam is also your participation. तो परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको रिजल्ट देख रहे हो नहीं कर, आपका सिर्फ काम है कि जाओ और बोलो बस. And it's amazing कि even some people open up to you and say कि यार I was a Christian but फिर मेरे साथ ये हो गया. So that's Absolutely, amazing. So the next question I have for you is, see, you bring a lot of people to church and the way you minister to them, you know, even as I said earlier, I'm a pastor's wife and sometimes I also get intimidated by you. I'm like, यार ये क्या कर रहा है 10 लोग क्या यार ये क्या, मैं तो एक भी नहीं लाई पिछले 10 दिन में या 10 सर्विस में and all of that, you know. So आपको कभी कभी लोग इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमको लगता है ना कि हम इसका काम नहीं कम कर सकते तो हम इसका दिमाग बदल देते हैं. Do people ever try to intimidate you or try to teach you? कई बार लोग भाई ऐसे ऐसे तो मत करो, ऐसे करो. हाँ? कई बार ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला, कोई ब्रदर्स ने बोला, कोई पास्टर्स ने मुझे बोला कि यू शुड नो whom to bring in the church. तुम्हें पता होना चाहिए कि एक चर्च का प्रोटोकॉल होता है, एक अच्छा स्पिरिट होता है, एक बुरा स्पिरिट होता है. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसको चर्च में लाना है. सो आई टेल टू दैट पर्सन दैट परमेश्वर बीमार लोगों के लिए इस दुनिया में आए, नॉट फॉर द गुड स्पिरिट. इफ द पर्सन इज हैविंग अ बैड स्पिरिट तो उसे तो परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है. ही नीड्स टू बी इन द चर्च, ही नीड्स टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट, ही नीड्स टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन हिज लाइफ. सो वो कई बार मुझे चर्च का प्रोटोकॉल बताते हैं, ये ऐसा है वैसा है, बट इट डज नॉट मेक मी सो मच क्या कहते हैं, दुखी नहीं करता मुझे, क्योंकि मैं उस चीजों से निकल के आ चुका हूं. अभी लाइक जर्नी हैज बिगन इन माय लाइफ, सो आई डोंट फील एनीथिंग. मेरे को परमेश्वर को जवाब देना है, मुझे किसी बंदे को जवाब नहीं देना. सो दैट्स व्हाट आई फील लाइक. सो आई ऑलवेज आई डोंट इवन, ये भी नहीं है कि मेरा कोई कंपटीशन है कि मुझे 20 लोगों को लाना है, 10 लोगों को लाना है, 2 लाख. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट किस बंदे को मैं आज बचा सकता हूँ, किस बंदे को आज मैं परमेश्वर का सुसमाचार बता सकता हूँ. दैट इज माय टारगेट. So you don't feel discouraged or something when some people, as you said, try to teach you the protocol? I used to. आपकी theology को थोड़ा correct करने की कोशिश करते हैं. Exactly. I used to get discouraged earlier कि यार मैं, कई लोगों ने बाइबल कॉलेज किया, कई लोगों ने कुछ किया, कई लोगों ने कुछ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. पर what I'm trying to give to people is that जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया. I'll tell you an example. मेरे को ये भी पता नहीं था कि evangelism इसे कहते हैं. This is sharing the gospel, sharing the Jesus is called evangelism. मैं तो कई हफ्ते तक, कई महीने तक, कई सालों तक मैं तो ऐसे ही परमेश्वर के बारे में बताता गया लोगों को. और मुझे बाद में पता लगा, जब मैं चर्च में जाने लगा कंटिन्यूअस, तब मुझे पता लगा कि अरे इसको तो evangelism कहते हैं. So my purpose was not to evangelize people. My purpose was to give what God has done in my life. My purpose is to give what Lord has done in my life. वो मुझे उनके सामने, I was just pouring out my heart to that person. कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, आपके जीवन में भी कर सकता है. You just need to surrender. You just need to look to Him. So if आप तो काफी साल से evangelism कर रहे हो. So now I realize कि कुछ लोग नए शुरू होंगे evangelism करना. So I feel अगर उनको कोई discourage करता है तो they shouldn't get discouraged. You know, absolutely, because absolutely. Even though you are somebody who's such a great evangelist, आपको भी लोग discourage करते हैं. बिल्कुल करते हैं. So it should be a lesson for people who want to start or who want to probably have already started or all out जाना चाहते हैं कि you have to just focus on God. That's it. आपका purpose है, because God is going to ask you how many people did you tell about me. So परमेश्वर से आप जब मिलोगे ना, तो परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि भाई केविन तूने किया क्या तुम्हारे जीवन के साथ, मैंने जो तुम्हें जीवन दिया था क्या किया. सो माई जॉब इज नॉट टू नॉट माई जॉब. इवेंजलिस्ट का जॉब ये नहीं है कि उसको किसी जवाब दे रहा है या कुछ कर रहा है, या उसको नहीं देखना. वो उसको सिर्फ परमेश्वर का प्यार उस तक पहुंचाना है, उस बंदे तक पहुंचाना है. परमेश्वर का
you know, the news of the good news should reach that person's heart. That should be the only reason, nothing Yeah. else. Because God is going to ask that person, कि आपने क्या किया अपने जीवन के साथ? The person who is asking you question, the person who is intimidating you, he will not be there, but Lord will be there with you to ask that question. So be prepared for that. So just open your heart. I'm sure there is a testimony for everybody's life. जो कोई भी एक मसीह होता है उसके जीवन में एक टेस्टिमनी जरूर होता है. बिना टेस्टिमनी का वो मसीह नहीं होता. हर एक बंदे के साथ या तो टैप में पानी नहीं आया तो उसने प्रार्थना के पानी आ गया. Whether it's the smallest testimony or it's the biggest testimony कि मैं मरने वाला था परमेश्वर ने मुझे बचाया. Both the testimonies are important for God. So you see God work in both of them. So just look for your this one कि आपको परमेश्वर को क्या जवाब देना. That's it. Amazing. Thank you. So my next question for you is if you ever plan, no, let's just skip that question because you've already answered that question for me. My question is that, you know, do you have a short message for all the aspiring evangelists, you know, out there जो ये interview देख रहे हैं? Is this something you want to leave them with, you know, कि जब उनको वो इवेंजलिज्म करना स्टार्ट करेंगे या दे वुड फेस सम ऑब्स्टिकल कि उनको याद रहेगा केविन भैया ने ऐसा बोला था एंड इट्स गोइंग टू रियली एनकरेज देम. इज देयर अ शॉर्ट मैसेज यू वांट टू लीव विद देम? या इवेंजलिज्म करने के लिए आपको व्हाट आई यूज्ड टू थिंक बिफोर कि अगर ये बंदा मेरे साथ परमेश्वर की बात करेगा तभी मैं उससे बात करूंगा. नो, दैट इज नॉट द थिंग. या ये बंदा कभी मुझे बहुत दुखी होकर मेरे पास आएगा तब मैं परमेश्वर की बात करूंगा. नहीं. I'll tell you an example, incident. I shared with you. One of my friend was coming from Calcutta. He wants to move his bike from Calcutta to Delhi. So he called me and said, Kevin, can you come and take my bike? So I got excited. He has to know Christ because I've shared with him and I will get the time to spend with him for 2 days, 3 days. Continue. मुझे धुतकार भी सकता लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता. मेरे पीछे ही बैठेगा वो. So I have to share the gospel. He doesn't have a choice. He was praying on the way and for last 3.5 days he was with me on the bike. I shared the gospel. He accepted Christ. He changed. He surrendered his life to God. So every opportunity. See, I am a biker, and God is giving me a bike from Delhi to from Calcutta to Delhi to ride. So if you desire, if you walk in the ways of the Lord, He will even take care of your desire in the midst of your evangelism. Yeah. So the message that you want to leave with all the evangelists out there or the young ones who are like, we want to share the good news is opportunity. Every soul is an opportunity. Absolutely. Talking is your responsibility. आप ये नहीं बोल सकते हो God, you are not using my life. Especially अगर आपको लगता है कि you have a call of evangelism upon your life कि मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा आपके बारे में. It is your responsibility to go that extra mile and talk to them. आप सिर्फ मुंह खोलो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा अपने आप. Amazing. Like Moses took the first step. You know, बहुत बार ये पिक्चर मेरे दिमाग में आ रही है जब आपने बोला ना कि I don't have the answers sometimes. वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है और मुझे पता नहीं कि मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, but I open my mouth और मैं ऐसा कुछ बोल जाता हूँ जो I had no idea of it. I had no idea what I did share. Yeah. Excellent. And last question is, do you have any theological degree or something like that, you know, where you have learned about mission work or you have learned about how to evangelize? ऐसा कुछ है आपके पास डिग्री? No, nothing like that. मैं तो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हुआ हूँ. पढ़ाई लिखाई तो दूर भागता मुझसे. कोर्स तो गलती से भी नहीं किया मैंने कुछ भी. Nothing. I did nothing. So आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मेरे पास तो कोई बाइबल डिग्री नहीं है, मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया? Well, all the 12 disciples जिन्होंने पूरा धरती को उथल-पुथल कर दिया, they never did any Bible college. Amen, they were just with Jesus and Jesus taught them everything. So my God is with me, Jesus is with me, and He is teaching me and leading me in everything I do. Beautiful. Thank you, Kevin. That was amazing, especially this part that, you know, all the 12 disciples, they were such ordinary people. Yes. You know, and they had to spend time with God, and that's what made them an evangelist. It wasn't a theological, and don't get us wrong, we are not against theological degrees, but everybody cannot go to Bible college. You know, everybody cannot. Like, I got saved at the age of 24. मुझे अपनी life संभालते थोड़ा 25 हो गया.
you know, and मुझे अपनी जॉब पे ध्यान देना पड़ा and had to work on my life, on my career. Bible college तो मुझे पता भी नहीं था exist करते हैं until the age of 27. You know, so everybody cannot go to Bible college, and that should not be the reason for you to stepping back from that fire in your heart that God has given. यार मुझे इससे बात करनी है about God, but मेरे पास तो डिग्री नहीं है, and people will question your fire. You know, like imagine somebody जिसका इतना, केविन इज समबडी जिसका फ्रूट एविडेंट है, क्योंकि केविन ना पहले जब नया नया चर्च आया था वो बोलता था आई विल ब्रिंग पीपल, तो रंजीत बोलता था हिज फ्रूट विल शो, हिज फ्रूट विल मेक इट एविडेंट कि ये कितना इवेंजलिज्म करता है, एंड इट मेड इट एविडेंट. तो सेम वे जरूर, यू नो, योर फ्रूट विल मेक इट एविडेंट टू पीपल कि आपकी जो फायर है कितनी रियल है. सो if you are not able to go to a Bible college, या if you're not able to have a formal training into mission work and all, केविन की लाइफ देखकर आपको बिल्कुल भी आपको इंटिमिडेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल किसी से, you should be encouraged, you know. I think Kevin takes God's business very personally. मेरे पिता का काम है ये, कैसे नहीं करूंगा. मैं तो कभी कभी अपने फैमिली को भी साइड में रख देता हूँ, बोलता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, रात को 2 बजे कोई आया बात करने में, I go down and speak to them. I know. Sana एक बार बहुत पहले when Sana and I met, Neha, she was complaining, what Sneha, he is on calls at 2 a.m, 3 a.m. He leaves from house at 2 a.m. किसी से बात करनी है, परेशान है. So it's just amazing to hear your life testimony, and what makes it more amazing is कि आप कौन से, Kevin is about to cry, he's crying. Now I think Kevin, it's making sense to you, you know, how God saved you, and now God wants to, I think, use what He has put in you and taught you for so many years. So I want to thank you, you know, personally, and from Ranjit's side also, and that you took time out to speak with us. It's my joy and privilege to share what God has done in my life, and मैं कभी जो जीवन आज जी रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I will even leave this life. My 60-70% of my friends are dead. They are not there anymore. And the life I'm living, if I just look back 15 years ago, 17 years ago, I feel like मेरे पास कोई hope नहीं था, मेरे पास जीवन का कोई मतलब ही नहीं था जीने का. But God has given me a beautiful life, a family with 2 kids, a ministry to work, and my sister once, she told me, you know, people will run for job, but people are calling you from home for work. That is what God does to our life. If you dedicate your life to God, and God works in our life, like, you know, आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं. So that's how God works in our life. Yeah, I remember when you had shared about George with us. At that time I didn't know George was coming, and हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे उस टाइम पे. फैमिलीज को हम फर्स्ट टाइम मिल रही थी शायद मैं सना से, सेकंड टाइम, एंड आई रिमेम्बर गॉड टेलिंग मी टू टेल यू कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एक्सपेंस. एंड आई वाज लाइक, मैंने बोल तो दिया बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है. एंड आई थिंक फ्यू डेज आफ्टर दैट ही टोल्ड मी गॉड गॉट मी अनदर जॉब, आई हैव 2 jobs now. And I was like, oh wow, this is amazing. You know, so yes, God takes care of His people, and without taking your liberty, I just want you to say, if you're okay with that, say your number here, so that if anybody wants to connect with you in future, yes, you know, please, अगर आप comfortable हो अपना मोबाइल नंबर यहाँ देने में, हम ये वीडियो अपलोड करेंगे YouTube पे, you know, for people to know, और वहाँ मैं नोट्स में डालूंगी. But at this point of time, if anybody is watching us, इनके पास केविन का नंबर नहीं है, and you need any guidance in terms of भैया मैं कैसे good news share करूँ, pray for me, help me, guide me, please feel free to connect with Kevin. That is the whole purpose of doing this interview. ये हम interview इसलिए नहीं कर रहे कि हम बता सके केविन कितना awesome है या मेरे पास कितने बढ़िया questions हैं. The only purpose of doing this interview is that you should know that there is an evangelist in each one of you. And it can come out if you get the right guidance. So yes, Kevin, can you please give your number, and I can also sure. mention your number here. Yeah, just before giving my number, I want to share one small incident. Whenever I travel, I always go to the prayer room in the airport, and I drop some tracts or Bible or कुछ मैं रखता हूँ वहाँ पे, and then on the bottom of that I write my number. So this gentleman called Shaukat,
like 2 years back, he went through my Bibles and tracts, and he called me and said, I found you genuine because you left the number there, because people do sometimes just share things and they don't share the number. They feel हाँ like ये मेरा personal number है, मैं नहीं दूंगा, या मेरा वो है. हाँ But numbers are so important to share, because the person may be in what condition of his life nobody knows, but if a number is there with him and he can call yeah that yeah number and the person can pray for that person in that particular situation, you know how God is going to bless that person and take him out of that situation. Because I know how God has worked in that, मतलब खत्म जीवन में परमेश्वर ने मेरे साथ कैसे काम किया है. very वो true लोग जो मेरे लिए खड़े थे, वो जो मेरे से प्रार्थना करते थे, because I had their numbers. So numbers are very important. Please, yeah, I would love to share my number. I don't have any personal number. All my personal numbers are used for my friends. I've also written the number in the comments, but please, you also Yes, say your number, and please, anybody who wants leaving tracks, leaving Bibles, please leave your number there, because he's right कि कई बार इतना desperation में आ जाते हैं लोग कि उनको पता नहीं है किसका नंबर है, पर एक hope में वो डायल कर लेंगे, right. you know. And Yeah, you never know yeah. that person reaches you when you pray for that person and that person's life changes, or you are even able to save that person's life physically, Yes, yes, you yes. know. That if Yeah, so, please, Kevin, if you can say your number, and people yeah, who yeah. don't have My your number, number they is can note it down. it's very easy to remember also. 987 30 40 132. Oh, so easy, yes. 987 30 40 132. Exactly. And I'm available 24/7, 365 days to pray for you, to listen to you, to you know, whatever you want in life. I am there to, you know, pray for you in every situation. Just feel free to call me anytime. Thank you so much, Kevin. I once again want to thank you for taking time out for giving this Oh, interview. it's my joy. And I Yeah. would want to hand over the final moments with your brother Ranjit, with your brother, not mine. Yes, sure, sure. You know, he was also very excited for this, and he's been nagging me for a long time. Kab karoge, kab karoge. So it's just not my idea. That's so sweet He's of him. also been wanting to do it. Ajo. What's up? Oh! Well done, guys. बहुत बढ़िया था. And God bless you, भाई. And it was good to hear your responses. मैं सुन रहा था अंदर से. And I hope there's a blessing for everybody to know that हम सभी का एक responsibility है परमेश्वर का वचन सुनाने की. हम कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, उतने पढ़े लिखे ना हो, मेरे तरह काले हो या केविन की तरह गोरे हो, मेरी तरह पतले हो या केविन की तरह मोटे हो, हम सब परमेश्वर पेटू निकला हो. एंड वी लव यू ऑल. एंड परमेश्वर आपको खुश रखे. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू थिंग, मे बी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. मैं सोच रहा हूँ 5 minutes to faith, so it's going to be just 5 minutes, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा. Various aspects of faith. Thank you, Kevin, once again. Love you, bro. And Thank you so much. जय It's मसीह की. my Praise the joy. Lord, everyone. Thank you for joining in. God bless you. Peace out. Bye bye.